Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to start a new module, that is a groundwater. So in this module, we are going to study this contains. In a groundwater, we are going to study sources and zones of a groundwater. What is water table, unconfined and purged aquifers, springs, factor controlling a water bearing capacity of a rocks, pervious and impervious rocks, cones of a depression and its use in a civil engineering, methods of a artificial recharge of a groundwater, geology of a percolation tank. And in a geophysical investigation, we are going to study a necessity of geophysical investigation, methods of a surface and subsurface investigations, importance of a electrical resistivity method, seismic refraction method, preliminary geological investigations, use of aerial photographs and satellites emergence in a civil engineering projects. So this all contains we are going to study in this module. So we are going to start with the groundwater. What is the definition of groundwater? So basically groundwater is considered a very important natural resource in a arid and a semi-arid and a dry regions. So this may be only a source of a water supply in this type of region. So even in a humid areas, groundwater is considered a better resource for a many economic and hygienic reasons. So आप सब लोगों को पता ही है कि जो एरियड रीजन्स होते हैं, सेमी एरिड रीजन्स होते हैं या फिर ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो पानी का सोर्स होता है वो क्या होता है? ओनली अ ग्राउंड वाटर, राइट? सो इसीलिए तो उसको एरिड रीजन्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेक्स एंड रिवर्स नहीं होता है. सो ग्राउंड वाटर मेन सोर्स होता है वाटर सप्लाई के लिए, और ह्यूमिड एरिया में भी हम लोग ग्राउंड वाटर को ही ये मेन सोर्स कंसिडर करते हैं. वो हाइजेनिक भी है और इकोनॉमिक भी है, ठीक है. सो यू कैन सी इन दिस फिगर below the water table there is two type of zones in a water table, right? Unsaturated zone and a saturated zone. So how we can define what is unsaturated zone and what is a saturated zone? So by this water table line, so above the water table line the zone that is called unsaturated zone, and below the water table line the zone is a saturated zone. So we can see below the what we can say that below the water table the water retained in a saturated zone, that is a groundwater, right? That water can be say as a groundwater. And you can see in this figure above the water table zone, even in a rocks, the water held by a molecular attractions sound surface of a rock particle, that is not a groundwater, right? That is a water, surface water. But below approximate level of a water table, the waters held by a molecular attractions in a surface of a rock particles below the water table line, that is called a groundwater, right? So groundwater जो होता है वो सूटेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. जैसे कि क्योंकि उसके अंदर टर्बिलिटी नहीं होती है, उसके अंदर कलर्स नहीं होते हैं पानी के, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होते हैं, और उस जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसको अगर हमें ड्रिंकिंग पर्पस या फिर कोई भी पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसको ज़्यादा ट्रीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर. क्योंकि सरफेस वाटर जो होता है वो ओपन टू एयर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर टर्बिडिटीज़ भी होती है, उसके डिफरेंट कलर्स के होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सी मतलब आपने डिफरेंट कलर्स के वाटर देखे होंगे. कहीं पे आपको ग्रीन कलर का पानी दिखता है, कहीं पे आपको स्काई कलर का पानी दिखता है, ठीक है. सो जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर कोई कलर्स नहीं होते हैं और उसके अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं कि जिसको हमें यूज़ करने से पहले ट्रीट करना पड़े,
ठीक है। और इट इज़ रिलेटिवली मच सफ़र फ्रॉम अ हैज़ार्ड्स ऑफ अ केमिकल एंड रेडियोजेनिक एंड अ बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। ठीक है, जो सरफेस वाटर होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस डेवलप होते हैं, तो वो भी अगर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं और वो ड्रिंकेबल या फिर कोई यूजेबल वाटर नहीं रहता है। तो उसको अगर यूज़ करना हो हमें तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, उसका बीओडी लेवल, उसका सीओडी लेवल, उसका पीएच लेवल उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग उसको पर्टिकुलर यूज़ के लिए ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है द सप्लाईज आर नॉट क्विकली अफेक्टेड बाय ड्रॉट and other climatic changes and hence there are more dependable। ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई होता है वो अगर ड्रॉट कंडीशंस आती है तो भी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सरफेस वाटर यूज़ करते हैं राइट इरिगेशन के लिए, तो अगर कोई बार बारिश नहीं हुई तो क्या होता है, बारिश नहीं होती, हम जो कोई फार्मर्स होते हैं वो बारिश के पानी से ही अपना गुजरान चलाते हैं। ठीक है, तो अगर एक साल बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, ड्रॉट जैसी कंडीशंस आ जाती है, हम लोग क्रॉप यील्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ग्राउंड वाटर ही एक सोर्स है आपके लिए और वही आपको यूज़ करना है, तो ऐसी ड्रॉट जैसी कंडीशंस भी आती है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बीइंग ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो अवेलेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए लेसर कॉस्ट होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें नेटवर्क ऑफ पाइप का यूज़ करना पड़ता है ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। तो आप लोगों ने वो भी देखा होगा कि आपकी कोई सोसाइटी में बोरवेल्स जैसा होता है। ठीक है, सो बोरवेल्स में कितने सारे पाइपलाइंस अंदर डालने पड़ते हैं। कभी कभी बोरवेल ख़राब हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको रिपेयर करने के लिए सारी पाइपलाइंस बाहर निकालते हैं, तो तब आप लोगों ने देखा होगा। तो ग्राउंड वाटर को अगर हमें बाहर निकालना है, यूज़ करना है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये पाइप्स ऑफ नेटवर्क्स का यूज़ होता है। यू कैन सी इन दिस फिगर sea level P1 and P2, that is sea level, H1 and H2 is a water table। तो ये माउंटेनियस रीजन्स भी होते हैं, उसके अंदर भी वाटर टेबल होता है। तो कभी कभी वो सरफेस में ये पॉन्ड में होता है, तो कभी कभी ये माउंटेन में भी दिखता है। सो वाटर टेबल के बिलो का जितना भी पानी है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड वाटर ये इनफिल्ट्रेट हो रहा है यहाँ से। बारिश के पानी से भी ग्राउंड वाटर टेबल हाई हो जाता है कभी कभी। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ द ग्राउंड वाटर कौन से होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द ग्राउंड वाटर तो डिफरेंट टाइप के वाटर्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेट्रोइट्रिक वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है मेट्रोइट्रिक वाटर, तो ये वाटर हम कहाँ से लेते हैं, तो जो प्रेसिपिटेशन होता है, तो प्रेसिपिटेशन दो फॉर्म में होता है, रेन या स्नो के फॉर्म में। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो पानी आता है वो क्या करता है, आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता ही है। ठीक है, जो पानी प्रेसिपिटेट होता है वो सी को जाके मिलता है और बीच बीच में क्या होता है, आधा पानी सरफेस वाटर में जमा हो जाता है, आधा पानी इनफिल्ट्रेट होता है। ठीक है, सो जो पार्ट इनफिल्ट्रेट होता है वो ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, लाइक ग्राउंड के अंदर इनफिल्ट्रेट होता है। ठीक है, सो कोई एक्वीफर होता है या फिर वाटर टेबल को हाई करता है। तो जो ये इनफिल्ट्रेटेड वाटर है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड जर्नी करता है जब तक उसको जोन ऑफ सैचुरेशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेट्रोटिक वाटर जो है वो हमें प्रेसिपिटेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, आप ये फिगर में भी देख सकते हो, प्रेसिपिटेशन हुआ और ये पानी जो इनफिल्ट्रेट हो रहा है वो पानी को हम लोग बोलेंगे मेट्रोटिक वाटर। उसके बाद सेकेंड है कैनॉट वाटर। ठीक है, कैनॉट वाटर किसको बोलेंगे, तो रॉक्स जो होते हैं, ठीक
ठीक है, रॉक सरफेस होती है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर क्रैक्स होते हैं, तो रॉक्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डीपोजिशन होता रहता है और स्क्वीज आउट हो जाता है पानी, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये डीप कॉम्पैक्शन तो होता ही है, बट ये पानी कभी कभी स्क्वीज आउट नहीं होता है, अंदर ही रह जाता है। तो वो जो पानी जो इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन की वजह से रिटेन होके पड़ा है आपके रॉक सरफेस के अंदर, उस पानी को हम लोग बोलेंगे कैनॉट वाटर, ठीक है। सो ये लाइमस्टोन या सैंडस्टोन या ग्रेवल ऐसे टाइप के जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर से मिलता है। और ये जो कैनॉट वाटर होता है वो सलाइन मतलब सॉल्टेड वाटर होता है, ठीक है। आप ये फिगर में देख सकते हो, लैंड सरफेस है, उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स ऑफ वाटर दिए हैं, ठीक है। फ्रेश पोर वाटर, फ्रेश वाटर डिस्चार्ज यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये है कन्फाइनिंग यूनिट, फ्रेश वाटर अगेन आ गया, उसका भी डिस्चार्ज होता है। ये है सलाइन पोर वाटर, ठीक है, सी फ्लोर के नज़दीक में होता है। सबमरीन स्प्रिंग्स जो होती है उसके नियर बाय जो पानी होता है उसको हम लोग बोलेंगे सलाइन पोर वाटर। उसके बाद है जुवेनिल वाटर, सो उसको हम लोग मैग्मेटिक वाटर भी बोलेंगे, ठीक है। उसका एक थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कैनॉट वाटर किसको बोलेंगे कि कॉम्पैक्शन जो हो रहा था उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन हुआ और जो पानी था वो रॉक सरफेस के अंदर रह गया, उसको बोलेंगे हम लोग कैनॉट वाटर। बट ये मैग्नेटिक वाटर किसको बोलेंगे, जो रॉक्स के अंदर पोरस मतलब पोरस रॉक्स होते हैं, कभी कभी रॉक्स के अंदर ये क्रैक्स रह जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो पानी रह जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्मेटिक वाटर। सो सम हॉट स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स आर क्लियरली डिराइव फ्रॉम अ जुवेनिल वाटर, ठीक है, उसके अंदर से ही बाहर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे जोन्स ऑफ अ वाटर, ठीक है। जो वाटर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसके अंदर सबसे पहला है सॉइल वाटर, इंटरमीडिएट वादोस वाटर एंड जोन ऑफ अ कैपिलरी वाटर, ठीक है। सो सॉइल वाटर किसको बोलेंगे, सो द सॉइल वाटर फॉर्म्स अ थीन लेयर कन्फाइंड टू अ नियर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ द लैंड। सो ये जो डेप्थ होती है वो बेसिकली 1 to 9 मीटर के बीच में होती है एंड दैट इज हेल्ड अप बाय अ रूट जोन ऑफ अ वेजिटेबल कवर ऑफ अ ग्लोब, ठीक है। वेजिटेशन कवर जो हो जाता है उसके रूट जोन में होता है। सो इट इज़ लॉस्ट टू द एटमॉस्फेरिक बाय ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। आप देख सकते हो कि हमारी जो सॉइल होती है उसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो वेजिटेशन कवर से कवर्ड होता है, ठीक है। सो ये जोन की डेप्थ कितनी होती है, 1 to 9 मीटर अराउंड सॉइल वाटर जोन की। और उसके अंदर जितना भी पानी है वो कैसे लॉस होगा, वो पानी सॉइल वाटर का ट्रांसपिरेशन थ्रू या फिर इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। सो दिस वॉज अ फर्स्ट zone of water. The second zone, that is an intermediate vadose zone, that occurs immediately below the zone of a soil water. soil water का जो लाइन ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट होता है intermediate vadose zone, right? So it is a fact a zone of a non saturation and water in this zone is moving downward under the influence of a gravity की वजह से क्या होता है, पानी डाउनवर्ड कंडीशन में जाएगा. So it is generally of a smaller thickness and maybe even absence in many cases. ये स्मॉलर थिकनेस में भी होता है. कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई केसेस में ये इंटरमीडिएट वादोस जोन के अंदर पानी होता भी नहीं है. द अबव जोन्स आर समटाइम्स कलेक्टिवली रेफर्ड एज अ जोन ऑफ एरेशन, ठीक है. तो इसीलिए ये जोन को हम लोग कभी कभी बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन, ठीक है. द जोन ऑफ अ कैपिलरी वाटर, उसके बाद ये थर्ड जोन है द जोन ऑफ अ कैपिलरी वाटर. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कैपिलरी फ्रिंज, उसको हम लोग कैपिलरी फ्रिंज भी बोलेंगे. सो इज
present only in a soil and rocks of a fine particle size underlying a vadose zone. ये जो vadose zone के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है. So in this fine particles size zone the ground water is drawn upward by a capillary action. Capillary action किसको बोलते हैं सब लोगों को पता ही है. So capillary action की वजह से क्या होगा, पानी थोड़ा ऊपर की साइड आएगा. So sometimes height of 2 to 3 meter above the saturated zone laying underneath. So growth of vegetation in some desert is a very often dependence on a presence of a capillary fringe. ठीक है, ये कैपिलरी फ्रिंज की वजह से ही ये जोन ऑफ कैपिलरी वाटर कंडक्ट होता है. सो आप ये इंटरमीडिएट जोन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, आप देख सकते हो ये है सॉइल वाटर. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सॉइल वाटर वाला जोन. स्ट्रीम है, ये सरफेस रन ऑफ हो रहा है, ये वेपोट्रांसपिरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, उसकी पूरी ये हाइड्रोलिक साइकिल के ऊपर डिपेंड्स है. ये है इंटरमीडिएट जोन. सो ग्रेविटी पर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट वाटर टू अ डीपर ग्राउंडर, मतलब ये नीचे की साइड ही आने देता है, अपने साथ नहीं रखता है. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट टॉपिक. So the water that goes below the surface of a land may be found to exist in a two main zones. ठीक है, हम लोगों ने आगे जोन्स तो देख लिए, बट उसके बाद भी दो मेन जोन्स है. एनवायरमेंट क्लासिफाइड एज अ वादोस वाटर एंड फेरिटिक वाटर और अ ग्राउंड वाटर. हम लोग दो जोन में उसको डिवाइड कर दिया है, वादोस वाटर एंड फेरिटिक वाटर और ग्राउंड वाटर. सो इन अ वादोस वाटर जोन 3 different types of environment are derived: soil water, intermediate vadose water and capillary water, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं. एंड ग्राउंड वाटर में दो होते हैं, वादोस जोन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन. सो आप ये देख सकते हो वाटर टेबल एंड कैपिलरी फ्रिंज की जो लाइन होती है उसके नीचे वाला जो जोन ऑफ सैचुरेशन है वो है हमारा ग्राउंड वाटर, और उसके ऊपर का जो जोन है उसको बोलेंगे वादोस जोन. ठीक है, ये जोन ऑफ सैचुरेशन जो होता है उसी के अंदर ग्राउंड वाटर होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ये एक फिगर है जो आपको बता रही है वादोस जोन, कैपिलरी फ्रिंज एंड वाटर टेबल. ठीक है, जो कैपिलरी फ्रिंज एक्शन की वजह से पानी नीचे जाता है और ऊपर आता है. जो ग्राउंड वाटर होता है हम लोग बोरवेल्स डाल के भी हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर. सो हम लोगों ने ये जो 3 जोन्स पढ़े आगे, जोन ऑफ एरेशन जिसको अनसैचुरेटेड जोन बोलते हैं. क्या होता है यहाँ जोन ऑफ एरेशन में ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे जाता है, जो हम लोगों ने आगे देख लिया था. कैपिलरी फ्रिंज की वजह से पानी ऊपर थोड़ा होता है जोन ऑफ सैचुरेशन में. ये है वाटर टेबल. pore species, waters and soil minerals of a rock materials. So ये पूरा है distribution of a ground water. So guys, यहाँ पे हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं. अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, गूगल क्लास मीटिंग में, या फिर कॉल भी कर सकते हो. बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय लेक्चर.